Hi friends, how are you? I am fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay. In this lecture, we are going to solve the complex number chapter for class 11. I think 3 lectures were already provided to you, and this is the fourth lecture from the complex number chapter. Okay. So in this lecture, we will solve the very important questions which are very useful and important also for the final exams. Okay, so one by one we will solve this question, and just the previous lectures and the previous calculations and the previous problems need to be solved by each and every students. Okay, and just if you have any query, if you have any doubts, then ask me in the comment section, or the WhatsApp number will be provided, and just you can ask me on this WhatsApp number also. Okay, so just write today's first question. Okay. If Z1 and Z2 are complex numbers such that Z1 and Z2 are complex number such that Z1 and Z2 are complex number such that 2Z1 by 3Z2 2Z1 by 3Z2 is purely real. Okay, purely imaginary. So purely imaginary. Okay, then find Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2, and this is mod, I think. Okay, mod. Now here two complex numbers are there, Z1 and Z2. The perfect structure of this Z1 and Z2 we don't know, but the general structure of the complex number we know: x plus iy, a plus ib, just like that. But the particular complex numbers are not given. You can assume whatever just you think. Okay, so Z1 and Z2 are two complex numbers such that this condition is given: 2Z1 by 3Z2 is purely imaginary, such that then find the value of this thing. Okay, so given, just write this thing, given 2Z1 by 3Z2. Okay, it is the purely imaginary. That means I will be involved. K you can take. K. Okay, purely imaginary, that is the assumption actually. Okay, so assumed purely imaginary दिया गया है, that means perfect कौन सा वैल्यू है वो तो हम लोग नहीं जानते, इसलिए we have assumed this perfect imaginary number as ik. Imaginary means I will be involved, and the coefficients with this I can be assumed whatever you think. Okay, so just ik is the imaginary number. Now can I write this line like that? Z1 by Z2, and this 3 will go to this ik into 3 by 2, right? Then Z1 by Z2 equals to 3ik by 2. Okay, and I think you need to find the value of this thing, Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2. Okay, so in this left hand side you can see Z1 by Z2 is there, but you need to find the value of this thing, Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2. So from this expression, how can you find this part, Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2? How is it possible? Okay, you have one process, and that is the componendo dividendo process. Okay, so what does it mean? If you have x by y equals to 5 by 3, suppose. Okay, so componendo dividendo means this is your numerator and this is your denominator. Numerator plus denominator by numerator minus denominator
equals to numerator plus denominator by numerator minus denominator. This is the componendo dividendo process, and this process is comprised in ratio proportion chapter, I think in class 8 or 7. Okay, so it is, this process is called componendo dividendo process. Okay, तो वही प्रोसेस यहाँ पर बोथ साइड हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे. कैसे देखो, तो Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 3ik प्लस 2 बाई 3ik minus 2. Just write this form in your graph. Okay, just I am going to erase it. Okay, वीडियो को पॉज करो और ये फॉर्मेशन लिखो. Okay, now you can see this type of formation is constructed. Just Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2. Okay, so मतलब यहाँ पर using this componendo dividendo Z1 plus Z2 by Z1 minus Z2 equals to 3ik plus 2 by 3ik minus 2. Using this componendo dividendo process, you can write Z1 plus Z2 by Z1 minus Z2, 3ik plus 2, 3ik minus 2. Okay, this process is called componendo dividendo process. Okay. Now I think you have got this type of structure. Okay, now I think this, according to this question, Z1 minus Z2, it should be in the numerator part. Just take the reciprocal on both sides. उल्टा कर दो, Z1 minus Z2 ऊपर चला जाएगा, Z1 plus Z2 नीचे आएगा. उधर 3ik minus 2 ऊपर चला जाएगा, 3ik plus 2. Okay, now according to this question, mod sign is also there, mod. Okay, so according to this modulus function property, if you have any modulus on a complex number, then the absolute value, that means real value, will come. Okay, how? Just like that. Root over minus 2 whole square, 3k whole square, divided by minus 2 whole square, plus 2 whole square, plus 3k whole square. Because x plus iy, if you have this mod on this, then the modulus answer is root over x square plus y square. In the modulus part, modulus of a complex number, okay, I think this concept was already discussed, and in that part, this modulus of x plus iy, this concept was also written. Okay, so now Z1 minus Z2 लिखा गया ना, ये Z1 plus Z2, right? Now 4 plus 9k square, and इधर 4 रूट भी है, ठीक है, 4 plus 9k square, इधर भी रूट है, तो आई थिंक ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा. देखो ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल होता है ना, so answer is what? 1. So that means modulus of Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2 equals to 1. It is the final answer. I think you need to find the value of this expression. तुम्हें इसका ही तो value निकालना था according to the question. So you have got the value. Okay? So next question जाओ. Very important question. ये जो question है बहुत ही important है. ठीक है? फिर next. उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी जो करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत आता है. ओके, लिखो. If x equals to, if next question लिखो, if x equals to minus 5 plus 2 root minus 4, okay, then find the value of एक चीज का वैल्यू आपको निकालना है. x to the power 4 plus 9x cube plus 15x square minus x plus 4, इसका वैल्यू आपको निकालना है. गिवन क्या है? x का एक वैल्यू गिवन है. Is it a complex number? Whatever the value of x is given in this question, just let me know, is this a complex number? Okay, so just till now this number is not seems like a complex number. Just we have to rearrange it. How? Because here you can see inside of this root negative number is there, and this thing denotes that this number is a complex number. But we need to make it a complex number. X equals to
-5 plus 2. Okay, and this -4 can be written as just like that. ठीक है ना, एक ही तो बात है. जैसे -4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 into -1, फिर रूट को सेपरेट भी कर सकते हैं. ये -1 आई थिंक व्हाट I -5 to √4. √4 means what? 2. 2 into 2, 4i. So it is the value of x, well structured value of x. Okay, now it is seems like a complex number. Now you need to find the value of this expression. The value of x is given. Just you have to plot the value of x here, and I think you will get the value of this given expression. Okay, so now x to the power 4, 9x cube plus 15x square minus x plus 4. X to the power 4, that is -5 4i whole to the power 4, 9 -5 4i whole cube minus plus 15 -5 plus 4i whole square minus -5 plus 4i plus 4. Okay, this is the we have plotted the value of x here. Now you need to use this to the power 4 value. यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर है, सबका फॉर्मूलाज आपको बिठा देना. ठीक है, अब a प्लस बी होल टू दी पावर 4, इसका वैल्यू तो हम लोगों को नहीं पता. आप लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, या फिर वो जैसे a प्लस बी होल टू दी पावर 4, उसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तब आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके बाद ठीक होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज कर देते हैं, वो इजी होगा. -5 होल टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस 4c1 -5 होल क्यूब 4i होल टू दी पावर 1, 4c2 -5 होल स्क्वायर एंड 4i होल स्क्वायर, 4c3 -5 होल क्यूब 4i होल क्यूब नहीं पावर 1, फिर ये क्यूब. ठीक है, फिर प्लस 4c4 -5 होल टू दी पावर 0, 4i होल टू दी पावर 4 प्लस 9. ये तो क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लोग को पता है. ठीक है, क्या होता है -5 होल क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्लोज. देन प्लस 15, ये तो स्क्वायर का है, स्क्वायर का भी हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4i प्लस 4. ठीक है, बस सब वैल्यूज बिठाना हो गया. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट. ओके, एवरीवेयर दिस कैलकुलेशन विल टेक प्लेस. So -5 whole to the power 4, even number power, minus will be absorbed. 5 to the power 4, that means 25, 625 plus 4c1 मतलब 4 होता है उसका आंसर, -125 into 4i प्लस 4c2 का वैल्यू कितना होता है 4 2 2. दैट मींस ये 4 को अगर करेंगे 3 into factorial 2, factorial to factorial cancel, 2 से ये काटो 6. So that means 6 25 16 i square. 4c3 यहाँ पर 4 ही होगा. 4c3 क्या होगा 4 होगा. 4 into -5 into 4 cube, that means 64 i cube plus 4c4 तो आंसर 1 है, so no need to write this thing. -5 whole to the power 0 1 होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 मतलब 1. 4i whole to the power 4, that means 4 to the power 4. 4 to the power 4 means 128 into i to the power 4. ठीक है, फिर क्लास 9 ब्रैकेट दो, ये क्या होगा -125 और इधर 25 into 3 प्लस 3
75 इंटू 4i, फिर माइनस 15 इंटू 16i स्क्वायर, ओके, प्लस 4i होल क्यूब, दैट मीन्स 64i क्यूब, फिर 15, ये 25, फिर माइनस 40i प्लस 16i स्क्वायर, ठीक है। और भी इधर बाकी है 9, ये 4 प्लस 5, 9 माइनस 4i, थोड़ा जगह करके इधर लिख लो, प्लस 9 माइनस 4i, 9 माइनस 4i इधर लिख लो थोड़ा, 9 माइनस 4i, ठीक है। सो सबका यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। अब तो यहाँ पर प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस अगर हो तो प्लस माइनस करेंगे, कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे। तो दैट मीन्स इधर 625, इधर 16 इंटू 125, सो ये देखो प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। सो 16 इंटू 125i, ठीक है। अब इधर देखो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, ये सामने प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इधर भी माइनस 25 इंटू 6 इंटू 16, इट मीन्स 25 इंटू 6 इंटू 16 आई स्क्वायर लिखना जरूरत नहीं है, -1 हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया यहाँ पर। फिर उधर है 20, इधर प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 64 आई क्यूब, है कि नहीं। अच्छा, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर 128, अच्छा आई टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। कैसे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1, दैट इज +1। तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मतलब क्या, आई टू द पावर 4 है, ठीक है। तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू +1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर +1 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस 9 ब्रैकेट में -125, फिर प्लस 75 इंटू 4i, फिर ये आई स्क्वायर, फिर से आई स्क्वायर आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 16 प्लस 64 आई क्यूब, फिर से आ गया, दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई, प्लस 15 25 माइनस 40i, और इधर 16i स्क्वायर, दैट मीन्स -16, सो +9 माइनस 4i। अभी जस्ट ये कैलकुलेशन पार्ट है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट मीन्स 625 माइनस 16 इंटू 125, ये सब मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 125i माइनस 25 इंटू 6 इंटू 16, ये आई स्क्वायर माइनस, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, 64 इंटू 20, दैट मीन्स 1280i प्लस 128, फिर 9, फिर प्लस देखे 9, इधर -125 प्लस 75 इंटू 4, दैट मीन्स 300i प्लस 15 इंटू 16, और इधर आई स्क्वायर -1 माइनस 64i प्लस 15, इधर 25 माइनस 16, 9 माइनस 40i प्लस 9 माइनस 4i, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो, 625 माइनस 125 इंटू 16, अच्छा आई वाला टर्म्स कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। आई वाला टर्म्स को एक साथ, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन लोगों को एक साथ लिखो। जैसे इधर 625 एक है, इधर ये वाला 625 माइनस 25 इंटू 6 इंटू 16, ओके।
फिर प्लस 28, इधर माइनस 125 इंटू 9 कितना होता है 125 इंटू 9 1125, ठीक है। और इधर प्लस 9 इंटू 15 इंटू 16, ठीक है। फिर प्लस 135 प्लस 9, तो जितना कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। और आई रिलेटेड जितना टर्म्स हैं उसको मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तो आई रिलेटेड टर्म्स प्लस 2, आई लिखो ब्रैकेट में, क्या क्या आएगा 1280, ये एक, फिर माइनस 16 इंटू 125, ये एक, और आई रिलेटेड टर्म क्या है इधर 300 इंटू 9, दैट मीन्स प्लस 2700, फिर माइनस 64 इंटू 9, ठीक है। फिर माइनस 600 माइनस 4, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस करो, डिवाइड तो नहीं होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आंसर माइनस 160 आएगा, माइनस 160 ऐसा आएगा, माइनस 160 ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। माइनस 160 आएगा यहाँ पर। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है, इसका, ठीक है। तो आज हम लोग ये नहीं करेंगे, आज आपको ये कैलकुलेशन करके जो है करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका शॉर्टकट प्रोसेस भी सीखेंगे। शॉर्टकट थोड़ा टफ है कि नहीं, इसलिए हम लोग आज ये नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना जल्दी शॉर्टकट नहीं सीखना है, सॉल्व करो, करके निकालो आंसर, ठीक है। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, if z is a complex number such that mod z equals to 1, okay, prove that z minus 1 by z plus 1, z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, What will be your conclusion if z equals to 1? What will be your conclusion if z equals to 1? अगर z equals to 1 हो तो क्या कंक्लूजन है, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले आपको ये गिवन पार्ट ये है और इसका आंसर जो है वो प्योरली इमेजिनरी निकालना है, ठीक है। ये प्रूफ है, आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सो हियर z इक्वल्स टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखने में कैसा है वो हम लोग जानते हैं, बट z इक्वल्स टू एग्जैक्ट क्या है वो गिवन नहीं है। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई ले लेते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन mod z इक्वल्स टू 1, mod z मतलब mod x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1। सो mod x प्लस आई वाई मतलब क्या है, ये x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So that means x square plus y square equals to 1. So mod z equals to 1.
यहां से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिला। ठीक है, अब किसी भी जगह इसका अगर यूज हो तो हम लोग यूज करेंगे। दैट मींस ये गिवन पार्ट है, उसको ठीक तरह से हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, नाउ z माइनस 1 बाई z प्लस 1, तो z माइनस 1 x प्लस आई वाई माइनस 1 x प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर जितना इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिखो, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिखो। जैसे ये दोनों रियल पार्ट है, x माइनस 1 उसको एक साथ लिखो और आई वाई ऐसे लिखो। ठीक है, इधर x प्लस 1 ऐसे लिखोगे और इधर आई वाई ऐसे लिखोगे, तो ये आपका मिल गया। तो मैंने बोला था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर डिनोमिनेटर पार्ट में आई रिलेटेड टर्म्स आ गया, आई रिलेटेड टर्म्स आ गया, तो आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दैट मींस ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, x माइनस 1 प्लस आई वाई, ये फर्स्ट है। ठीक है, और ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 माइनस आई वाई, और नीचे x प्लस 1 प्लस आई वाई, x प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है। किसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट। दैट मींस मिडिल में प्लस है तो मिडिल में माइनस देकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अगर आपके पास मिडिल में माइनस होता तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो नाउ ऊपर जो है उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई वाई और ये x प्लस 1 माइनस आई वाई। नीचे जो है a प्लस बी a माइनस विथ इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई इंटू वाई एक्स माइनस 1 प्लस आई इंटू वाई एक्स प्लस 1, फिर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई इधर x प्लस 1 होल स्क्वायर और इधर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा है ना, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं, और तो कुछ नहीं हो रहा। फिर आओ इधर ये सब मल्टीप्लाई करके तोड़ो, उसको क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो a प्लस बी या माइनस बी फॉर्मेशन, a प्लस बी या माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आई वाई, ये एक टर्म आई वाई का, ये भी एक टर्म आई वाई का। तो आई वाई अगर मैं कॉमन लूं तो इधर आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इधर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस 1 है, सामने एक माइनस है, इधर एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। ऊपर और कुछ बाकी है नहीं है। सो नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये भी सेम आई स्क्वायर और सामने माइनस है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर ये कैंसिल, हाँ दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों पे एक साथ लिख रहे हैं और इधर माइनस 1 माइनस आई वाई इंटू माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है कि नहीं। मैंने निकाल के रखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है क्वेश्चन में, तो दैट मींस 1 माइनस 1 माइनस 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 प्लस 2 आई वाई बाई इधर भी 1 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो दैट मींस ये तो कैंसिल ही है, सो रहेगा सिर्फ 2 आई वाई बाई 2 प्लस 2x, बस हो गया। सो i इंटू 2x वाई बाई 2 अगर मैं कॉमन लूं 1 प्लस एक्स, 2 टू कैंसिल। तो यहाँ पर कुछ रियल पार्ट है, देखो सिर्फ i रिलेटेड टर्म से रह गया है, i है ना, i है ना, तो i है, दैट मींस इट इज नॉट द रियल पार्ट, इट इज द इमेजिनरी पार्ट। सो क्या है, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली
इमेजिनरी, ओके ना, सिर्फ इमेजिनरी, कोई रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ आई रिलेटेड टर्म्स ही है कि नहीं। अगर आई रिलेटेड टर्म्स आ गया दैट मींस इट इज द इमेजिनरी पार्ट, इट इज नॉट द रियल पार्ट, ठीक है। यहां पर फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इफ z इक्वल्स टू 1, इफ z इक्वल्स टू 1 तो आपका कंक्लूजन जो है वो क्या होता। अगर z इक्वल्स टू 1 होता, क्वेश्चन में देखो लास्ट एक पार्ट दिया गया है, इफ z इक्वल्स टू 1 देन व्हाट विल बी योर कंक्लूजन। अगर z इक्वल्स टू 1 हो तो आपका कंक्लूजन यहां पर क्या होगा, है कि नहीं। तो सेकेंड पार्ट वाला जो है उसका करना है। देखो इफ z इक्वल्स टू 1, यहां तो एक तो प्रूफ हो गया, अब लास्ट एकदम लास्ट वाला जो पार्ट है वो, इफ z इक्वल्स टू 1 देन x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1। मतलब क्वेश्चन में तो मॉड z इक्वल्स टू 1 दिया गया था, तब आपको प्योरली इमेजिनरी मिला। अगर यहां पर z इक्वल्स टू 1 होता, मॉड z नहीं, सिर्फ z इक्वल्स टू 1 होता तो क्या होता, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 को हम लोग 1 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। दोनों साइड अगर कंपेयर करें, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, है कि नहीं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, ऐसे हम लोग कंपेयर मेथड से निकाल सकते हैं। सो नाउ क्या था, z माइनस 1 बाई z प्लस 1, ऐसे ही तो था क्वेश्चन, है कि नहीं, z माइनस 1 बाई z प्लस 1। सो इसका z माइनस 1 बाई z प्लस 1, उसका आंसर क्या आया था, 2iy बाई क्या आया था, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मेशन आया था, है कि नहीं। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 0, बिठा दो और x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0। देखो तो क्या आंसर आ रहा है, z माइनस 1 बाई z प्लस 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या है 0, तो ये 2 इंटू आई इंटू 0 बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो पूरा आंसर तो यहाँ पर 0 आ रहा है, which is real। आई नहीं है ना, तो इट इज द रियल पार्ट। सो अगर यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 हो तो इसका जो आंसर है वो प्योरली रियल मिलता है, प्योरली इमेजिनरी नहीं मिलता है। इसलिए तो क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट विल बी द कंक्लूजन इफ z इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो कंक्लूजन मिल गया। कंक्लूजन क्या है, कहा अगर z इक्वल्स टू 1 प्लस हो, z इक्वल्स टू 1 हो तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है z माइनस 1 बाई z प्लस 1, इसका आंसर जो है प्योरली रियल मिलेगा आपको, ठीक है। फिर if z equals to x plus iy, next question जाओ। These are all very important questions, okay, and a little bit conceptual also, okay. So if z equals to x plus iy and omega equals to 1 minus iz by z minus I, z minus I, show that mod omega equals to 1, this implies z is purely real। इस क्वेश्चन का ये इंप्लाइज साइन का मतलब क्या है, मतलब है कि आपको ये z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लेना है। अब क्वेश्चन में बोला गया ओमेगा का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब शो दैट अगर मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1 होता है, इट इज द कंडीशन पार्ट, रिमेंबर दिस थिंग, यू डिड नॉट टू प्रूव दिस पार्ट, दिस इज द कंडीशन पार्ट, इंप्लाइज दैट, मतलब अगर z इक्वल्स मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1 होता है तो z का वैल्यू प्योरली रियल मिलेगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1 ये गिवन पार्ट है, ठीक है, याद रखना है। सो गिवन हियर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, वेरी गुड। ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस आई जेड बाई z माइनस आई,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है। तो यहां पर देखो ओमेगा का वैल्यू अगर मैं बिठाऊं आई जेड बाई जेड माइनस आई इक्वल्स टू 1, मॉड भी है नहीं? हम लोग मॉड को तोड़ के ऊपर नीचे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई जेड मॉड में रहेगा और इधर जेड माइनस आई, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि जेड इज प्योरली रियल। तो जेड को प्योरली रियल दिखाने के लिए जेड का स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो जेड प्योरली रियल है या फिर प्योरली इमेजिनरी है, उसके लिए तो मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू एक बार अगर मिल जाए मुझे, तो यहाँ पर शायद मैं जेड का वैल्यू क्या रियल है या फिर इमेजिनरी है वो हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। सो मॉड 1 माइनस आई जेड मतलब क्या है, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, है कि नहीं। तो यहां पर मॉड 1 माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई और इधर एक्स आई कॉमन वाई माइनस 1 मॉड भी है, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस आई एक्स, ये आई स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस वाई और इधर एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 मॉड। तो इधर रहेगा 1 प्लस आई माइनस आई एक्स मॉड और इधर एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 मॉड। तो रूट 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड को तोड़ दिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब दोनों साइड में रूट भी हट जाएगा, रूट भी हटा दो, दोनों साइड में रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ क्या 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, बोथ साइड एक्स स्क्वायर भी कैंसिल। इसको अगर मैं फॉर्मूला तोड़ू 1 प्लस ट्वाइस वाई प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई प्लस 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, बट 2y माइनस 2y दैट मीन्स 4y इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू क्या पार्ट आ रहा है, 0। सो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है ना, z इक्वल्स टू x प्लस y का वैल्यू क्या है 0, i इंटू 0 दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट पूरा 0 निकल रहा है, दैट मीन्स z इक्वल्स टू x। सो यहाँ पर i का पार्ट नहीं आ रहा है, i का पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, y का वैल्यू 0 है। सो इसलिए z x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, z इज प्योरली रियल ही मिलेगा, इमेजिनरी कहां से आएगा, आई का टर्म तो यहां से चला ही गया, वाई का वैल्यू 0 बिठाने से तो यहां पर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, है कि नहीं। सो जेड इज प्योरली रियल, ठीक है। Next, if alpha and beta are the different complex numbers, if alpha and beta, ये जो क्वेश्चन है अभी जो करेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 100 स्टार मारो, उसको 100 मतलब स्टार, ठीक है, 100 स्टार, 100 स्टार के ऊपर भी कुछ है 1000 स्टार मार सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 स्टार, ओके। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, if alpha and beta are two different complex numbers, okay, with mod beta equals to 1, find beta minus alpha
1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, मतलब इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है कि नहीं। तो गिवन क्या है, गिवन मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक तरह से एकदम कंसंट्रेशन देके, फुल कंसंट्रेशन देके ये सुनो। मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने शायद लिखा है, देखो प्रूफ भी क्या है, जेड इंटू जेड बार, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर जाओ, वहां पर जाके देखो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा है, मॉड जेड होल स्क्वायर, प्रूफ भी किया था, मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार, ये प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो नाउ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, मॉड है ना, मॉड के ऊपर अगर मैं स्क्वायर दे दूं, अब लोग सर वैल्यू तो इसका निकालना है, तो आपने स्क्वायर क्यों दिया, पता चलेगा। देखो अगर मॉड के ऊपर मैंने स्क्वायर दे दिया तो कैसे लिख सकते हो उसको, बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बार इंटू बीटा इंटू फिर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार, जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, दैट मीन्स यहाँ पर साइड में लिख रखो, हियर z इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा को z कंसीडर किया है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्फा और बीटा जो है दोनों ही तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा और बीटा अगर यहाँ पर अंदर में है, ये पूरा का आंसर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना, है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल्स टू उसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड्री तो नहीं है कि नहीं। तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार। अब इसका ये रहने दो, अब इसका करें बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, बार अगर रहे, मैंने बोला था ये दूसरे एक प्रॉपर्टी है Z1 बाई Z2, ये भी लिखा था मैंने, होल बार अगर रहे तो Z1 बार बाय Z2 बार आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस देके ऐसे साइड में लेकर रखो, वही हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा बार बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा होल बार, ठीक है। सो बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, बार तो मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है। तो होल बार अगर रहे तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार, क्यों, सेम साइड में लेकर रखो, Z1 प्लस Z2 बार होल बार है, तो उसको हम लोग Z1 बार प्लस Z2 बार ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, माइनस होने से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में माइनस है, आप माइनस होने से भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, अब 1 के ऊपर क्या बार साइन यूज करें, बार साइन मैंने बोला था कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही काम करता है, रियल नंबर के ऊपर काम नहीं करता है। 1 ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नंबर है, तो 1 के ऊपर बार का कोई काम नहीं है, 1 ही रहेगा। माइनस ये जो टर्म है इसके ऊपर आपको बार यूज करना है, अल्फा के ऊपर तो ऑलरेडी बार है, उसके ऊपर आपने बार यूज किया, दैट मींस क्या है, आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे घुमा फिरा के तो वही नंबर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर एक है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर बार है, उसके ऊपर फिर से बार, दैट मीन्स आंसर घूम फिर के जेड ही आएगा, है कि नहीं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने कॉन्जुगेट ले लिया है बार, उसके ऊपर फिर से कॉन्जुगेट, दैट मीन्स वही नंबर घूम फिर के आएगा। एग्जाम्पल अगर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो बार होने से क्या होगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, फिर से बार होने से क्या होगा, फिर से x प्लस आई वाई हो जाएगा, तो ये क्या है, z है ना। so दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर डबल बार यूज करें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल वाला जो है वो घूम फिर के आ जाता है। दैट मीन्स अल्फा के ऊपर बार, उसके ऊपर बार, दैट मीन्स अल्फा घूम फिर के आएगा, बीटा के ऊपर तो बार है, दैट मीन्स बीटा बार है, बस हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये सब मिटा दो, ठीक है, ये लिख लो साइड में, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं लिखोगे तो मार्क काटेंगे। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, देखते हैं बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, ठीक है। सो मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई,
ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। ठीक है, नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बार। ठीक है, बीटा इंटू बीटा बार ये क्या है, मॉड बीटा होल स्क्वायर है ना, मॉड बीटा होल स्क्वायर है ना, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड होल स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दैट मींस बीटा के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन में बोला जाता है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बीटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ना होता, बीटा अगर नॉर्मल कोई भी रियल नंबर होता, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब रियल नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, सो मॉड बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मींस बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा होल स्क्वायर माइनस, ये सब तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, उसको ऐसे एज इट इज सेम, और अल्फा इंटू अल्फा बार दैट मींस मॉड अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और इधर प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार दैट मींस मॉड अल्फा होल स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो मॉड बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, मॉड बीटा होल स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार मॉड अल्फा होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा, इतना बड़ा बार क्यों, अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और ये तो 1 है, सो मॉड अल्फा होल स्क्वायर है। तो देखो पूरा मैच करता है, पूरा एक्सप्रेशन जो है कैंसिल हो गया, कैंसिल होके सिर्फ 1 रहेगा। सो लिखो, सो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, मैंने होल स्क्वायर लिया था ना, आंसर क्या निकला 1, तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो सो बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका आंसर क्या मिला 1। okay, so these are the solutions of the complex numbers. So in this lecture only this thing, this type of questions were solved. Okay, in the next lecture we will solve some other questions from the complex numbers, and that will be the last lecture from the complex number, I think. Okay, so it is the 4th lecture. Okay, so just try to solve, because we are solving very less, because just you need to practice it, no? NCERT exercise, miscellaneous, and this every questions were done. Just you can see NCERT exercise questions and this miscellaneous questions, RD Sharma questions, all the questions are being solved. Just you can see, just you can verify. Okay, that means those questions are very very important for the board standard, that means final exams, that are all solved. Okay, so just you need to practice these questions. Here I am solving these questions, but you are not solving these questions. So you need to solve this type of questions, and exactly these questions by your hand, by yourself. Okay, because all the questions whatever I am solving, these are the actually this benchmark questions. Okay, so these questions I think used to come in every year, every exam. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट कैलकुलेशंस जो है हम लोग करेंगे, और ये जो लेक्चर नंबर ये 4 है, 4 तक आप लोग प्रैक्टिस करके पूरा खत्म करिए। ठीक है, अगर मतलब कोई भी डाउट अराइज हुआ, just ask me in the comment section and I will prepare a separate video for the doubt, and just you send me the image. Okay, just don't write sir ये क्वेश्चन, just send me the image, फोटो खींचो, इमेज भेज दो। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस जो है हम लोग का नहीं हुआ है, आप लोग थोड़ा करके दीजिए। ठीक है, इंडक्शन से भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया था, वो हम लोग वो भी करेंगे। डाउट क्लियरिंग पार्ट वीडियोस जो है वो अलग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, डाउट जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, फिर एक साथ मिला के हम लोग सिर्फ डाउट क्लियर ही करेंगे। ठीक है, जितना सारा क्वेश्चंस नहीं होगा, जस्ट अभी जो है प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद।
you.